سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی مولوی ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو گردوں کی گریڈ 3 بیماری بھی لاحق ہے. جیسے ہی ڈاکٹرز نے کلیئر کیا نواز شریف کو اسپتال داخل کرا دیا جائے گا. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی دیکھیے. جی ان کی ٹریٹمنٹ آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے 19 نومبر لاسٹ ایئر یہ وہ ہے، اور ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. 2 بڑے سینٹرز ہیں، ایک ہیماٹولوجی کے حوالے سے گائز اینڈ سینٹ تھامسز جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہے، اور سیکنڈلی فار دی کارڈیو ویسکولر وہ رائل برامپٹن ہاسپٹل میں ایک ٹیم ہے ان کو لک آفٹر کر رہی ہے. ہی از آن میڈیکیشن، اور ان کے جو کاؤنٹس ہیں پلیٹلیٹ کاؤنٹس دے آر اسٹل کوائٹ انسٹیبل اور ویریبل، اور میڈیسنس کے تھرو ان کو ایک سرٹن لیول پہ مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ جو بلڈ تھنرز ہیں فار دی سیفٹی آف کارڈیک ڈیزیز وہ ان کو دیے جا سکے. پچھلے وہ 2 to 3 ویکس میں ان کے نان انویزو انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں، جس میں ایکو کارڈیوگرام ہے، ہولٹر ہے، اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واز روبیڈیم پیٹ اسکین. اٹس فار ہارٹ، یہ ہارٹ کی پرفیوژن بھی دیکھتا ہے، وائبلٹی بھی، مسل کی وائبلٹی بھی چیک کرتا ہے. سو دیٹ واز ڈن، and there is a significant problem. We had an idea of it earlier as well. جب سروسز ہاسپٹل لاہور میں وہ ایڈمٹ تھے on the night of 24th and 25th October he had a cardiac event. تو similarly وہ اسٹیبلش ہوا ہے پیٹ اسکین پہ، جو پرفیوژن اسکین ہے، جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو ڈیفیشینٹ ہیں پرفیوژن، ایز ویل ایز جو کارڈیک وائبلٹی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہے، فنکشننگ میں افیکٹس ہے. دے ہیو ایڈوائزڈ کہ ایک ان کا انویزو پروسیجر ہونا چاہیے، انٹرونشن، کارڈیک انٹرونشن، تو PCI کہتے ہیں، پر کنٹینیوس کارونری انٹرونشن. اٹ ہیز ٹو بی ڈن very important as early as possible. It is something which is mandatory for his heart health and for his life as well. And اس کے لیے important یہ ہے کہ he should be cleared from the hematology جو ان کو کلیئر کریں تاکہ وہ ایک انویزو پروسیجر ہو سکے. Secondly, the thing which is important is that there is an underlying renal disease, kidney disease ہے ان کی grade 3 ڈائگنوز اور اسٹیبلش. تو جو پروسیجر PCI's انٹرونشن ہے اس میں دے ہیو ٹو یوز سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف کانٹراسٹ، جسے ڈائی کہتے ہیں آپ، وہ نیفروٹاکسک ہوتی ہے، ڈیمیجز دا کڈنی. تو انیشلی اٹ ہیز بین پلانڈ کہ اٹ ول بی اے اسٹیج پروسیجر، 2 پھیزز میں کریں گے، اور فرسٹ فیز میں اٹ ول بی اے ڈائگنوسٹک ایکچولی جو ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ویئر از دا بلاکیج اور کیا ایکسٹینٹ آف لیجن کیا ہے اور کیا ڈیزیز پروگریشن ہے، بیکاز اٹ ہیز ٹو بی اے گرافٹ اسٹڈی. ان کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے اینڈ ہی ہیز گاٹ 4 گرافٹس، تو ہیز ٹو بی آن دا فرسٹ فیز. اینڈ سیکنڈلی جو لیجنز ہیں ان کو پھر ٹیکل کیا جائے. سرٹن لیول پہ وہ دے آر ان کانٹیکٹ، دی ہیماٹولوجی ٹیم اینڈ دا کارڈیو ویسکولر بوتھ آر ان سنک. تو وہ دے آر مینٹیننگ ایک سرٹن لیول ایبسلوٹ نارمل جو ہے اچیو کرنا میرے خیال میں شاید ایٹ دس اسٹیج ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، پاسبل نہیں. مگر جو ویلیوز پہ دی کارڈیو ویسکولر ٹیم اینڈ دی ہیماٹولوجی تھنکس کہ ہی کین انڈر گو پروسیجر، دے ول ڈو اٹ، بٹ وی کیناٹ سے کہ وہ آج ہوگا، کل ہوگا یا کب ہوگا. بھارت میں شہریت کے متنازع قوانین پر دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے. لندن کے شہروں نے مسلمان مخالف قوانین کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں اور دیگر شہریوں کا کیا کہنا تھا. مودی کے اقدامات بھارت کو تباہی کے دھانے پر لے کر جا رہے ہیں. جب کسی قوم کا وقت قریب آتا ہے تباہی بربادی کا، اس کا عقل چھین لیتا ہے. اس وقت انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، تو یہ جو سفرنگ ہو رہا ہے ناٹ اونلی مسلم پیپل، ایون دا انڈین سیلف، ہندو بھی تکلیف میں ہے ایک بندے کی وجہ سے، سرکار، مودی سرکار کی وجہ سے. عالمی دنیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ عالمی طاقتیں جو ہیں اس چیز پہ غور کریں، اس چیز کا سخت سے سخت نوٹس لیں، اور تاکہ اس چیز کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے. نہیں تو یہ جو
जंग छेड़ने जा रही है इंडिया, ये बहुत आगे तक जाएगी और इसमें बहुत जानें ज़ाया होंगी। दो कौमी नज़रे की बात है तो दो कौमी नज़रिया कभी मरा ही नहीं है इंडिया में, और ना बड़े सग़ीर पाक व हिंद में मरा था। और दो कौमी नज़रिए पे जो हमारे मोहम्मद अली जना कायद आज़म साहब ने हमें एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत दी थी, आज वो बात साबित हो गई कि 1947 में हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया पाकिस्तान में रहने का वो सही था। दहशतगर्दी है वहाँ पर बरपा है हिंदुस्तान में, और आज से ये बात साबित हो गई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो दो कौमी नज़रिया था वो सच साबित हुआ है। आज उससे ये पता चला है कि उनकी जो बसीरत का पता चला है कायद आज़म की, कि वो जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त, जो उन्होंने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। जिस तरह बरबियत और जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, और सारी दुनिया उस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। UN ने समेत बाकी महज़ब दुनिया भी जो है, सो काल महज़ब दुनिया, वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। जो कुछ भारत में हो रहा है वो बहुत अलार्मिंग है, उसका इस्लामी बरादरी को बहुत शिद्दत से नोटिस लेना चाहिए, और अब उसको देखना चाहिए कि मुसलमानों के साथ वहाँ कश्मीर से लेके दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में जो भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से किसी नाम से, उसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर PTI के सीनियर नायब सदर और रहनुमा ज़फ़र अनवर के एजाज़ में एक जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की और आज़ाद कश्मीर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में मीरपुर, चकसवारी और डडियाल से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद आबाद है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा और सीनियर नायब सदर ज़फ़र अनवर ने बर्मिंघम का दौरा किया तो PTI आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम के कारकुनों ने उनके एजाज़ में जलसे का अहतमाम किया। इस मौके पर जलसे की इंतज़ामिया ने मेहमान ख़ुसूसी को बर्मिंघम आमद पर खुश आमदीद कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा जनरल इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करके आज़ाद कश्मीर को तहरीक इंसाफ का बेस कैंप बनाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी ज़फ़र अनवर ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी उनका सरमाया है। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कश्मीरी बच्चों को अपने वतन से जुड़े रखने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं जिनकी वजह से आने वाली नस्लें भी अपने आबाई इलाकों से मुंसलिक रहें। 150 दिनों से ज़ायद हमारी माँ बहनें मैसूर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल का नक्शा कश्मीर पेश कर रहा है, तो हमारे सियासतदानों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया और एक मुस्तद आवाज के साथ कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर ज़फ़र अनवर, इनामुल हक नामी और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जब से इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, बिरौन मुल्क उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इमरान खान साहब उसके भरपूर कश्मीरियों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और भरपूर जदोजहद भी कर रहे हैं। आप ये देख लें कि कुआलालंपुर समिट में न जाने के बावजूद आने वाले चंद महीनों के अंदर OIC की वज़राए ख़ारजा के इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, जिसमें तमाम इस्लामिक मुल्क शामिल हो गए और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर वो मसला कश्मीर के ऊपर हो रहा है। ये इस बात की वाज़िया दलील है कि खान साहब अपनी पूरी काविश जारी रखे हुए हैं। आज यहाँ बर्मिंघम में एक तारीख़ कश्मीर का जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ये तमाम मुक़र्रीन ने ये कहा कि हम मकबूजा कश्मीर की जदोजहद के लिए उस वक्त तक हम ये जारी रखेंगे जब तक हमें अपना हक खुद अरादियत नहीं मिल जाता। नौजवान अपने बासीरत क़यादत है, ज़फ़र अनवर साहब हैं, बैरिस्टर साहब हैं, इंशाल्लाह मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली के सूरज जो है तुलू होगा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के आज़ाज़ में हमने यहाँ एशिया का बंदोबस्त किया था, तो आज का ये जमे गफ़ीर जैसा कि आपने देखा, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अब एक सुनामी बनकर उभरेगी। मुबारकबाद उनको देता हूँ जो पाकिस्तान के बैरिस्टर साहब की कामयाबी के इलेक्शन के LA3 में इस चीज़ को साबित कर दिया है कि LA2 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी। एक भरपूर फंक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर की ब्रांच है उसने बर्मिंघम में उसका इनेकाद किया और हल्का नंबर 2 से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आए। मैं देख रहा हूँ कि आइंदा जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, PTI न सिर्फ जीतेगी, वहाँ पे भारी अक्सरियत से जीतने के बाद हुकूमत बनाएगी। जलसा गाह के दौरान PTI में नए शामिल होने वाले ग्रुप को खुश आमदीद कहा गया। चौधरी अंजर और ख्वाजा शिराज की क़यादत में शामिल होने वाले ग्रुप को कारकुनों ने वेलकम कहा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के अहदेदारान की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें वर्ल्ड वाइड कन्वीनियर ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन और बरतानी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मखदूम तारिक महमूदुल हसन शाह, तर्जुमान पंजाब हुकूमत आतिफ चौधरी और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन टोबा टेक सिंह मेहमान खसूसी थे। तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिस्टल में ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान की जानिब से मुनक्कद की गई तकरीब में मेहमान जब मुकामी हॉल पहुंचे तो ब्रिस्टल ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के नुमाइंदगान ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर बरतानिया भर से PTI, मुस्लिम लीग नून और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन के ओहदेदारान और दीगर मुकर्ररीन ने OPC के अगराज और मुकासद बयान किए, वहीं ओहदेदारान ने तकरीब के दौरान शुरका का सख्त और तल्ख सवालात के जवाबात मुस्बत अंदाज में दिए। नामवर शायर और मुसन्निफ महबूब चौधरी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर शिकवा और जवाब शिकवा पंजाबी इशार पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दून था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पाँव में जिसने ताजे सरेदारा। इस मौके पर मखदूम तारिक महमूदुल हसन शाह का कहना था कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। पंजाब कमीशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना है। तनकीद तो डेफिनेटली हर जगह होती है, लेकिन हम मुस्बत तनकीद का खैर मकदम भी करते हैं कि लोग हमें अपनी आरा दे, लेकिन कोई दोस्त जो है वो खाम खा की कल्चर भी है हमारा पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ओवरसीज के काम करना है और हम इस काम को इबादत समझकर और चैरिटी के बेस पे कर रहे हैं और हमने तमाम ऐसे दोस्तों को लिया है जो बेदाग माजी हो जिनका। तर्जुमान हुकूमत पंजाब आतिफ चौधरी का कहना था कि PTI हुकूमत के दौर में मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो पाकिस्तान सरमायाकारी करें। 2014 में ये कमीशन बना था, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उन्होंने ये कमीशन बनाया था, लेकिन कभी आज तक मतलब मैं खुद यहाँ पे 18 साल से रह रहा हूँ, मुझे और मैं 12 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ UK में भी पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता था OPC किस तरह काम करती है, OPC के नुमाइंदे कहाँ पे हैं, किस तरीके से करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं क्योंकि PTI का भी हिस्सा हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी हिस्सा हूँ, कि अब जिस तरीके से ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि आप लोग अब यहाँ पे 32 लोग हैं जो वाइस चेयरमैन से लेके और एडवाइजरी काउंसिल तक आपके पास लोग खुद आ रहे हैं। इस मौके पर नवीद आलम चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब टोबा टेक सिंह का कहना था कि ओवरसीज पंजाब कमीशन गैर सियासी इदारा है। इस मौके पर इमरान खलील, आसिफ भट्ट, नासिर मीर, आसिफ खान, मलक लतीफ ने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के किरदार पर इजहार ख्याल किया। उस टाइम इन्होंने कोई यानी ये काम नहीं कर सके, लिहाजा इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कोशिश की है कि इन्हों गायब किया जाए और इन्हों यानी दिता जाए अपना मौका के काम करना। हम मिल के काम करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया, ये अच्छे सिंसियर लोग चुन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ना, जो लोगों की कम्युनिटी लिए काम कर सके और इनके मसाइल को हल कर सके। पिछले 6 हफ्तों में हमने काफ़ी अवेयरनेस की थी। आप देख लें सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है और हम एक सोर्स है ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन को ओवरसीज़ के लोगों तक लिंक करना, और वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जितने तशरीफ लाए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी। OPC की जो हवाले से बात करूं तो ये आपको बताऊं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज और पाकिस्तान की धरती को जोड़ने का काम है, आपस में इनका राब्ता बढ़ाने का काम है, अगली नस्लों को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने का काम है। इमरान के विजन के मुताबिक जो भी ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह उनकी दहलीज पे हल होंगे, और साथ साथ मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो अपना पैसा हुंडी के ज़रिए, रेफरेंस के ज़रिए ना भेजें, वाया बैंक पाकिस्तान भेजें, ताकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो बड़ी मुश्किल से खान साहब की दिन रात की मिनटों से बेहतर हुई है उसको सहारा मिल सके। ये अदारा
काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इसी इदारे को जो पुराना पहले ऑलरेडी नून लीग ने बनाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही इदारा इतना फाल हो गया है कि यूके में हर एरिया में आपको ओवरसीज पंजाब कमीशन के मेंबर्स और वाइस चेयरमैन मिलेंगे। इख्तिताम में मेहमानों के मज़ेदार खानों से तवाज़ो की गई और ओपीसी का केक काटा गया। पुर्तगाल में सफीर पाकिस्तान जावेद जलील खटक का कहना है कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर के अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए सफीर पाकिस्तान का कहना था कि अफसोस की बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जबर और रियासती दहशतगर्दी की वजह से मजलूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तकरीब में पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीरी शहादा के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के जल्द हल की दुआ भी की गई। सऊदी अरब के शहर अल खबर में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सऊदी वज़ारत तालीम के एहलकारों और पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने दीगर सिफारती अफसरान के हमरा शिरकत की। उमर अली की ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में फेडरल बोर्ड के सालाना इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड राना जुल्किफल को दिया गया। इसके अलावा काशिफ जब्बार, मजहर, सैयद नूर, इमाम नकवी और मोहम्मद हमजा को शानदार कारकर्दगी पर मेडल्स और दीगर इनामात से नवाजा गया। दीगर तुलबा को भी इम्तहानात में कामयाबी पर एजाजी इनामात दिए गए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तानी तुलबा तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करके दयारे गैर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तुलबा को चाहिए कि वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ें और दौरे हाजिर के मुताबिक दुनिया का मुकाबला करें। But also help you serve your own people and your own country better. So please don't stop here. Keep on working hard. Keep on making all of us proud. तकरीब में स्कूल के लिंक ऑफिसर वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़, DHM ज़ीशान अहमद सऊदी, वज़ारत तालीम के आवाद अल मक्की और स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की और तुलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दुबई में पीपल्स यूथ गोल्फ और पीपल्स यूथ UAE के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई है। सालगिरह की इस तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात से पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत समेत जियालों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पैदाइश के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी की सालगिरह मनाई गई। तकरीब में पाकिस्तान से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान सदर गल्फ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन फारूक चीची का 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि पीपल्स यूथ के नौजवान बिलावल भुट्टो का हर अव्वल दस्ता हैं और अपने चेयरमैन की हर कॉल पर लब्बैक कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज के दिन हमने ऐद किया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीबों के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए खातर जो अपनी जान कुर्बान की थी, और आज के दिन हम इस चीज़ का याद करते हैं कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देंगे। तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक सेनेटर अकबर ख्वाजा ने भुट्टो शहीद की खिदमात पर रोशनी डालते हुए उनको कौमी हीरो करार दिया। देखिए, भुट्टो साहब का सिर्फ पीपल पार्टी पे एहसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान पे एहसान है उनका। उनकी क्या बोलते हैं न्यूमरस है कंट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो आईन पाकिस्तान है। आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब आए उस वक्त हमारी सड़कों पे ख़वातीन थी कि जो हमारे जंगी कैदी वापस किए जाए। माशाल्लाह वो 95,000 कैदी भी आए, 50,000 मुरब्बा मील ज़मीन भी आए, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना। और पाकिस्तान में उस वक्त डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए जब पाकिस्तान बिल्कुल एक बुनियाद से ऊपर आ रहा था। सदर पीपल्स पार्टी UAE सरदार जावेद याकूब का इस मौके पर कहना था कि वो अहद करते हैं कि कायदे अवाम का जो मिशन था उसकी तकमील के लिए वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92nd हम उनकी सालगिरह बना रहे हैं। PYO गल्फ़ और PYO UAE मिलकर बना रहे हैं।
اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بھرپور پروگرام یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد عوام کا جو مشن تھا اس کی تکمیل کے لیے ہم انشاءاللہ آخری دم تک کوشش کریں گے۔ صدر پیپلز پارٹی گلف میاں منیر ہانس کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دنیا میں ناقابل تسخیر بنایا، وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کا پہلا متفق کا ایک آئین دیا اور بے شمار ایسے کام کیے جس سے پاکستان ایک دنیا میں ناقابل تسخیر بنا اور پاکستان کو پوری دنیا میں عزت احترام ملا۔ اور بھٹو صاحب نے یہ عرب ممالک میں جس طرح آج بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے پاسپورٹ پہلی دفعہ دیا، غریبوں کو انہوں نے جینے کا حق دیا اور آواز دی کہ وہ کسی کے بھی ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر محفوظ چیچی نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ قائد عوام نے جو جمہوریت کی شمع جلائی تھی وہ اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ کے موقع پر اس عزم کا ادا کرتے ہیں کہ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جلائی ہوئی شمع کو زندہ اور تابیدہ رکھیں گے اور ان کے ویژن، ان کے مشن کے مطابق، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دست و بازو بڑھیں گے۔ تقریب میں پارٹی کے بانی قائد سمیت پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حنیف کھٹانہ، سینیٹر اکبر خواجہ نے خصوصی شرکت کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ کا کیک دبئی کے مقامی ہوٹل میں کارکنوں اور رہنماؤں نے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن گلف کے صدر فاروق چیچی کے ساتھ مل کر کاٹا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔